Assalamu alaikum students. वालेकुम सर। I think we have waited enough और आज की क्लास में मुझे लगता है स्ट्रेंथ कम है. ओके क्लास, तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बनाने के लिए दिया था फॉर लूप से. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव मेड इट. जिसने बनाया है वो हाथ खड़ा करें. Raise your hands if you have made the pattern. सर पैटर्न बना Azizur Rahman Safi, can you hear me? Azizur Rahman Safi. Azizur Rahman Safi. Okay, so every one of you have made the pattern except for Hamad Ali, Muzammil Sajjad and Azizur Rahman Safi. Azizur Rahman Safi, in the last lecture I gave you a pattern of stars that you had to program. Have you made that program? Assalamu alaikum, sir. Alaikum assalam. Aziz Rahman, are you understanding this subject? Do you know how to program? Sir, to understand full knowledge. Well, I've been teaching you how to program. I want to know how much have you understood about programming. I want to understand the level of programming that you can do. Sir, Obviously, you are struggling with English, simple English, and will become very difficult if you cannot understand English. Either you have to understand English or you have to understand Urdu. sir, Urdu is not understanding English. You cannot understand Urdu. Not understand. Can you understand English? Yes. Also English.
So what should we do? Have you made the pattern that I gave you? I gave in the last lecture I Sir, gave this pattern, and you had to program. Here is the pattern. service network problem. Your is close, close. The nested loops. Have you made this pattern? I want to know, have you made this pattern? Azizur Rahman, What, sir? have you made this pattern? This pattern, have you made a program for it? Sir, I am not under. Can you display hello world on the monitor? Can you write a program to write hello world on the monitor? So many of you will be wondering, okay, Azizur Rahman Safi, you should write your roll number before your name as well. As you can see, all the participants have written their roll number, then their name in the username ID of Zoom. You should write your roll number as well. I can only see your name. Okay. Okay, sir. Muzammil Sajjad, roll number 12. Yes, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने ये पैटर्न बना लिया? सॉरी सर, मेरा लैपटॉप हुआ है परसों, इस वजह से नहीं मिला। लैपटॉप खराब हुआ है आपका? जी सर, रिपेयर होने थे। Okay, and what about Hamad Ali? Hamad Ali. I think he has left. All the other participants have made this program. Saqib Yasin. Saqib. Yes, sir. अच्छा, आपने ये प्रोग्राम बना लिया? जी सर, बना लिया। अच्छा बच्चे, वो मेरे से शेयर कर सकते हो आप? जी सर, मैं कर रहा हूँ अभी। वो कोड शेयर कर दो बच्चे। सर मुझे व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप कर सकते हो? फाइल शेयर या वैसे स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट नहीं, आप फाइल शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। So I'm waiting for Saqib Yasin to share his file. As soon as he does that, we will discuss the program he has made for the pattern of stars. सर टॉप ऑन करके देर में 2 मिनट बाद। Okay. So what I want you to do is
डू वी हैव मोहम्मद अली? अली बच्चे एक ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप का, ठीक है, रफ के नाम से, प्रोग्रामिंग, रफ प्रोग्रामिंग के नाम से। उसको क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसके अंदर अपनी सारी फाइल्स शेयर करें। ये जो पैटर्न मैंने आपको बनाने के लिए दिया था उसके अंदर सारे अपनी फाइल शेयर करें, और फाइल के अंदर अपना रोल नंबर और नेम, फाइल के नाम के अंदर अपना रोल नंबर और नेम हो। अच्छा, तो हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, लास्ट लेक्चर को। So in the last lecture we saw if else statements, okay, and here in the simple example we saw how if else works. If the condition is true, the body of if is executed. Otherwise, if the condition is false, the body of else will execute. Okay, so this is how if else work. Then we saw a program that could count number of words and number of characters entered by the user. Okay, and we did that with the help of if else की मदद से हमने वो काम किया था. Okay, and the logic behind that was every word has a space separating them. Okay, दो words को separate करने के लिए उनके दरमियान में space होती है. Okay, so if the user entered space, what we did was we incremented the word count, otherwise it would be a character. And that is how we did that, and we created the logic while the user does not enter press the enter key. We asked again the user to enter another character, and so on and so forth until that phrase was ended, and the end of that phrase was signified by the pressing of enter key by the user. Okay, and in the last we displayed the word count and we displayed the character count, and the logic behind initializing character count with -1 and word count with 1 was that when the user enters characters, okay, that last enter key is also recognized as a character. Okay, so to eliminate that pressing of enter key in the character count, we initialize the character count with -1 and we initialize word count with 1 because initially there is a word. Okay, first word is ended with a space. Then the second word starts, and then the third, and so on and so forth. Okay, so initially we have one word in the phrase, so that is why we initialize the word count with 1. So that was the use of if else. Now we have nested if else statements. Okay, for example, you have has anyone here traveled by train? ट्रेन से किसी ने सफर किया? Yes sir. Yes. ट्रेन की टिकट लेने का क्या तरीकेकार होता है? अगर कोई 10 साल से छोटा बच्चा हो तो उसकी टिकट कितनी होती है? 60 साल तक के बंदे की कितनी टिकट होती है? 60 साल से ऊपर बंदे की कितनी टिकट होती है? कि जो छोटा था उसकी तो टिकट होती है, हाफ टिकट जो 10 साल के तो उनकी फुल होती है, फुल सीट। फुल सीट होती है, और इसी तरह 60 साल से जो ऊपर होते हैं उन्हें भी डिस्काउंट मिलता है. ओके, सो देयर आर मल्टीपल कंडीशंस फॉर विच वी हैव डिफरेंट फेयर्स. हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिनका अलग से रेट है. ठीक है, हमारे पास लाजमी नहीं है हर मरतबा 2 कंडीशन होगी कि अगर ये कंडीशन है तो ये एग्जीक्यूट कर दो, नहीं तो ये एग्जीक्यूट कर दो. लाजमी नहीं होगा हमारे पास कि हर मरतबा ऐसा हो. हमारे पास हो सकता है कि मल्टीपल कंडीशंस हो कि अगर इधर से इधर रेंज है,
ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो। लेट्स से एज इज, इफ द एज इज इन बिटवीन 0 and 10, ठीक है, एज इज ग्रेटर देन 0 and less than 10, द फेयर of the ticket will be this, ठीक है, and else if the condition is between 10 to 60, age is greater than 10 and less than 60, that fare of the ticket will be this, else the fare of the ticket will be this. Okay, so we for that condition we use nested if else. There are multiple if else conditions. Okay, so here is the syntax of it. If the condition is true, execute the if body. Okay, else if this condition is true, execute this body. Okay, else if this condition is true, execute this body. Ignore the rest of it. बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जिस कंडीशन पे हमारी जो भी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही होती है, सिर्फ वही else if की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। In the end we have else. Okay, in the last we use only else, we don't use else if. Okay, so here is an example of if else statement, and in this example हम कार्टेशियन प्लेन के थ्रू किसी भी पॉइंट की लोकेशन नोट कर रहे हैं। ओके, हमारे पास एक नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। So what we are doing is initially we are starting from 0 0, जो आपके पास पिवट होता है 0 0। तो x की वैल्यू हमारे पास इनिशियली क्या है 0 और y की वैल्यू इनिशियली क्या है 0, ठीक है। और हम यूजर से कह रहे हैं कि आप किस पॉइंट पे जाना चाहते हैं। ओके, सो अगर आपके पास यूजर कहता है मैं नॉर्थ की तरफ जाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे y माइनस माइनस, नॉर्थ इज directed downwards in this Cartesian plane, या ये हम इसको खत्म करते हैं। What we do is here we have a Cartesian plane, here we have north, south, and then east and west. East and ओके। सो अगर आपके पास यूजर कहता है कि मैं एक पॉइंट नॉर्थ की तरफ गया हूं, तो वो n प्रेस करेगा, ठीक है। अगर वो 2 मरतबा n प्रेस करेगा तो इसका मतलब है कि -2 y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2, ठीक है। इसी तरह वो कहता है मैं ईस्ट की तरफ गया हूं, सो वो आपके पास x प्लस प्लस करेगा। सो इन द एंड वी विल गेट द लोकेशन of the user entered by the user, okay, and we will display that location. Okay, let's say -2 और +3, यानी कि यूजर 3 मरतबा E प्रेस करता है और क्या कहते हैं 2 मरतबा N प्रेस करता है। सो उसकी जो लोकेशन बनेगी दैट विल बी 3 and -2. So in the end we will display that location entered by the user. Okay, और कब तक हम यूजर से लोकेशन हासिल करते रहेंगे? जब तक वो एंटर प्रेस नहीं करता। ई प्रेस करता है, एस प्रेस करता है, डब्ल्यू प्रेस करता है या एन प्रेस करता है, हमारा ये काम बार बार होता रहेगा यूजर से वैल्यू लेने का। जैसे यूजर एंटर प्रेस करेगा, हमारा जो भी वैल्यू होगी आपके एक्स की या वाई की, ठीक है, दैट विल बी displayed in the end. So here we have include input output stream, include console input output dot h, okay, because here we are using this function that is defined in the console input output dot h library. Okay, initially we have direction A, okay,
दैट इज़ अ रैंडम वैल्यू, यू कैन हैव एनी वैल्यू हियर। और इनिशियली हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है। इनिशियली यूज़र पिवट पॉइंट पे उसकी लोकेशन है, ठीक है। जब तक यूज़र एंटर प्रेस नहीं करता, दैट what we are asking the user to enter his location, his or her location, okay, and whatever the key is pressed by the user, we will store that value in the dir variable which is of character type, जो कि character type का variable है। so जो भी value user enter करेगा, user की value हम enter किससे ले रहे हैं, get ch से, scene से भी ले सकते हैं, ठीक है, हम get character से भी ले सकते हैं। so get character जो भी value press करेगा that will be saved in। if the user had pressed n, what we will do is we will decrement the y value, okay, by 1। if the user presses s, we will increment the y value, okay, and if the user presses the e, we will increment the x value, and if the user presses w, we will increment the y value। so here in this construct, as you can see, there are 4 options that user can press to enter his or her location, okay। so there are multiple conditions against which we have to take action। आपके पास 4 कंडीशंस हैं जिसके अगेंस्ट हमने एक्शन लेना है। अगर n प्रेस करेगा तो हमने y को डिक्रीमेंट करना है, अगर s प्रेस करता है यूजर तो हमने y को इंक्रीमेंट करना है। इसी तरह e अगर प्रेस करता है, वी इंक्रीमेंट दी x वैल्यू, एंड अगर हमारे पास user w प्रेस करता है, वी डिक्रीमेंट दी x वैल्यू। so we have multiple conditions, so if the condition is this, execute this, else if the condition is this, ठीक है, condition is this condition is true, execute this body, okay, else if condition is this, execute this body। so we have the video of a participant, Hamad Nawaz। there are 2 Hamad Nawaz in this list। एक ही हाथ नवाज है। मुझे I want you to stop your video unless you have something to show us। so what I want you to do is I want you to make a program that gets the age from the user, ठीक है, यूजर से वो एज लेगा और डिपेंडिंग अपॉन दैट एज, ठीक है, एक प्राइस, टिकट की प्राइस आप सेट करोगे डिपेंडिंग अपॉन दैट एज, ओके। अगर एज 0 से 10 तक है, आपने एक प्राइस सेट करनी है, हाफ प्राइस कह लो या क्वार्टर प्राइस कह लो, व्हाटएवर। अगर 10 से 60 तक है तो आपने फुल सीट की प्राइस सेट करनी है। अगर आपके पास एज 60 से अबव है तो आपने डिस्काउंटेड प्राइस, व्हाटएवर द डिस्काउंट दैट यू वांट टू गिव, आपने ये प्रोग्राम बनाना है, ओके। और ये बनेगा किस तरह, इफ एल्स से, ओके। Here is in this example we have if else structure. If a is equal to b, we are getting 3 numbers from the users a, b and c। first value is stored in a, second in b and third in c। तो आपके पास, अगर आपके पास a b को इक्वल है, ठीक है, अगर ये 2 नंबर इक्वल हैं तो फिर आपके पास ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ओके। इस चीज़ को हमने ब्रैकेट के अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर a इक्वल टू b है तो कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर ट्रू होती है तो फिर कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। अगर ये फॉल्स होती है तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। सो आप देख रहे हो कि हायरार्की के अंदर
अगर हम इसे ब्रैकेट के अंदर नहीं भी लिखते तो इनमें से या ये स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन लाजमी एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसे ब्रैकेट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं रही। ओके, सो दिस एल्स corresponds to this if। ठीक है, ये जो else की बॉडी है ये किसके साथ अटैच है, इस if के साथ अटैच है। ओके, अगर आपने इसका पार्ट नहीं बनाना आपने, सो व्हाट यू विल डू इज आप इधर एक ब्रैकेट लगाओगे, इधर एक ब्रैकेट लगाओगे। ठीक हो गया, उससे क्या होगा कि आप ये जो else है, नाउ दिस विल बिकम पार्ट ऑफ दिस if। ये इस प्रोग्राम को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे व्हेन द लैपटॉप कीबोर्ड इज सॉर्टेड। ठीक है, ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एंड वी डोंट वांट दैट। ओके, सो फॉर नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट if there are multiple conditions, ठीक है, you can execute them with if else, nested if else। ठीक है, nested if else से आप उन multiple conditions को execute। for example हमारे पास 4 cases थे, यूजर n प्रेस कर सकता था, s प्रेस कर सकता था, e प्रेस कर सकता था या w प्रेस कर सकता था। हो सकता है यूजर इन 4 कैरेक्टर्स के अलावा कोई की प्रेस कर दे, तो आप इधर क्या करोगे, else wrong input, सी आउट wrong input। सो इस प्रोग्राम को भी आपने बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप क्या, अगर यूज़र को की अलग से प्रेस कर देता है, एक्स प्रेस कर देता है या वाई प्रेस कर देता है, तो आप कहोगे रॉन्ग इनपुट। ठीक है, ट्राई अगेन, रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन, प्लीज एंटर एन एस ई और डब्ल्यू। आप यूज़र को ये मैसेज दे सकते हो। ओके, सो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, यू यूज इफ एल्स स्ट्रक्चर। You have another structure called switch statement। आपके पास switch statement एक और कंस्ट्रक्ट है जिसके थ्रू आप मल्टीपल कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मल्टीपल कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, सो वी हियर इज द स्विच स्टेटमेंट सिंटेक्स कि आपके पास अगर कोई इंटीजर नंबर है, ये सिर्फ इंटीजर नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। Okay, so statements only executes on integer number। So if you are applying a switch statement on a variable, integer variable, so according to the value of that integer variable, the corresponding statements will execute। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, और अगर आपके पास इन दोनों वैल्यूज़ में से n की वैल्यू नहीं है, ना n की वैल्यू 1 है ना n की वैल्यू 2 है, तो फिर आप इन दी एंड डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट देते हो जो कि एग्जीक्यूट होती है। और इसमें एक और चीज़ आप नोट कर रहे हो, ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि आपके पास जो भी ब्लॉक होता है बॉडी के, जिस ब्लॉक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है, जहाँ जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपका जो कंट्रोल है कंपाइलर का वो इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी उस ब्लॉक की। ओके, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तो होगा क्या, ये 2 स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, साथ ही ये 2 स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आती। ओके, सो ब्रेक स्टेटमेंट इधर लाजमी होता है। सो दिस इज द सिंटेक्स। सो इसका कीवर्ड यूज करेंगे, देन वी हैव सिंपल ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद वो वेरिएबल जिसके केसेस के ऊपर आप अपनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। ठीक है, सो केस 1 की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जिस किसी भी केस पे आप अपना
स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, आप उस केस पे उस वैल्यू के ऊपर आप अपना केस एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल केस 10, अगर 10 की वैल्यू है या अगर कोई कंडीशन स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस बॉडी, दिस इज द टू केस बॉडी, सेकंड केस बॉडी, ब्रेक कॉजेज एग्जिट फ्रॉम स्विच ब्लॉक। ये जो ब्लॉक कोड है, ठीक है, ब्रेक क्या करेगा, इट कॉजेज एग्जिट फ्रॉम स्विच ब्लॉक, यानी कि आपके पास ब्रेक से नीचे जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, उससे जो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। स्विच वेरिएबल को देखा जाता है इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो हेयर वी हैव फर्स्ट केस कांस्टेंट। सो आपके पास फर्स्ट केस, अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू है तो आपके पास फर्स्ट केस बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर आपके पास फॉल्स है तो फिर सेकंड केस की वैल्यू को देखा जाएगा। अगर आपके पास सेकंड केस की वैल्यू के इक्वल है वेरिएबल की वैल्यू, तो फिर आपके पास सेकंड केस बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स है तो फिर आपके पास nth केस कांस्टेंट, ठीक है, तो nth केस एग्जीक्यूट होगा। अगर ये सारे केसेस फॉल्स हो जाते हैं तो इन द एंड डिफ़ॉल्ट बॉडी एग्जीक्यूट होती है। ये जो आपके पास डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड है, आगे कॉलन है, ठीक है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होगी, अगर ये सारे केसेस फॉल्स होते हैं, किसी भी केस से n की वैल्यू मैच नहीं होती, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, उसके बाद आपके पास एग्जिट हो जाएगा। So here is the same program, ठीक है, in which we had north, south, east और west, ठीक है। तो आपके पास इंटीजर और कैरेक्टर जो वेरिएबल्स हैं उसके आप ऊपर स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो, ओके। फ्लोट के ऊपर नहीं कर सकते आप, डबल के ऊपर नहीं कर सकते, ओके। सो हमने वही क्या कहते हैं 0 से x और 0 को इनिशियलाइज़ किया। जब तक यूज़र एंटर प्रेस नहीं करता तो हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, एंटर योर लोकेशन। यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा दैट विल बी सेव्ड इन dir। अगर आपके पास dir की वैल्यू n उसने एंटर की है तो हम क्या कर देते हैं y माइनस माइनस, ठीक है। सो केस के अंदर हमने y माइनस माइनस दो स्टेटमेंट्स हैं इस केस के अंदर। ये एक केस है, केस कैरेक्टर n, ठीक है, कॉलन, ये केस इधर से शुरू हो गया। पहली स्टेटमेंट क्या है, y माइनस माइनस। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक। अगर हम इधर ब्रेक नहीं लगाते तो y माइनस माइनस भी एग्जीक्यूट होगा और इसी तरह y प्लस प्लस भी एग्जीक्यूट होगा, जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी यूज दी ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह आपके पास अगर dir की वैल्यू s है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। दिस कंडीशन इज false, dir is not equal to n, so what will happen, it will go to the next case which is case s, ठीक है। अगर dir की वैल्यू s के इक्वल है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, y प्लस प्लस। अगर ये नहीं है, ठीक है, और ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हम इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे y प्लस प्लस करके, ओके। उसके बाद दोबारा से ये जो y का ब्लॉक है ये और ये दोबारा से यूज़र से वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। सो अगर आपके पास s केस s भी फॉल्स है, यानी कि dir की वैल्यू s के इक्वल भी नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। किससे क्या कहते हैं, dir की वैल्यू मैच की जाएगी e से। अगर e के इक्वल है तो x प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। अगर dir की वैल्यू w की इक्वल है तो y x माइनस माइनस से की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ओके। अगर इन चारों में से कोई केस नहीं है सो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा विच इज़ ट्राई अगेन। ना आपने n एंटर किया, ना s एंटर किया, ना e एंटर किया, या ना w एंटर किया, सो आपके पास ये चारों केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे और ये जो डिफ़ॉल्ट केस है ये एग्जीक्यूट होगा विच इज़ ट्राई अगेन। ये एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से आपके पास स्विच की बॉडी एंड हो जाएगी, ठीक है, और दोबारा से वो एंटर लोकेशन मांगेगा। So that is an example of switch statement in which you have a variable and depending upon the value of that variable you can have multiple cases and statements which you want to execute, ठीक है।
Okay, so we have less than a minute. जैसे ही हमारा ये सेशन एंड होता है, मैं ठीक है एंड करके नया सेशन शुरू कर रहा हूँ। ओके, तो ज्वाइन